I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's a very important subject and data privacy protection and compliances in India and abroad and GDPR. And we will also discuss whether a professional can use the digital signature of the client, and if he use, what are the consequences. And on this subject, our elder brother, one and one only, Google rank number one, cyber expert, public speaker on cyber law in India, advocate and company secretaries, Anuj Agrawal ji is with us. I welcome sir. I welcome you sir. I also welcome our सेंट्रल काउंसिल मेंबर. मैं प्रेजेंट सेंट्रल काउंसिल मेंबर ही कह देता हूँ, विजय गुप्ता जी. सर फॉर्मर ही रखो अभी तो, अरे बना दोगे दिसंबर में, ठीक है. राजीव कोहली जी, सुनील धमीजा जी, हेमंत पावा जी and सुनील अरोरा जी and all the attendee. So it is my also duty to brief introduce our today's speaker. Anuj Agrawal ji is an advocate practicing in Delhi High Court and Supreme Court of India. He is a chairman of Cybrotech Digi Venture in Private Limited, chairman of Center for Research on Cyber Crime and Cyber Law, author of Cyber Crime First Responder Guide SOP for Law Enforcement in Hindi and English. He is also a trainer and faculty on cyber crime, cyber law, digital forensic and evidence to UP Police, Telangana Police, Maharashtra Police, Delhi, Haryana, Narcotics Control Bureau, MP Forest Department, National Institute of Bankers, Institute of ICI, Company Secretary, National Law University, Indian Institute of Technology, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Ministry of Home, Government of India, Ministry of IT and Electronics, Ministry of MSME. He already trained 10,000 law enforcement officers and 1,000 judicial officers, judges. He is a cyber crime and economic offences investigation advisor to various law enforcement and police units. He is a visiting faculty, National Investigation Agency and New Delhi, Central Detective Training Institute, Ghaziabad and Jaipur, Ministry of Home Affairs, Government of India. He is a founder, chairman, Computer Society of India, Noida chapter. He is a former member of Expert Committee on IT, Corporate Law and SME of SOCHM. He is a member of Insurance Institute of India. He is a member of Data Security Council of India, NASCOM, Delhi chapter. He is expert speaker on Raj Sabha TV, Doordarshan and all other TV channels and print media. And above that, what he's doing and what he can do for us, I'm giving some brief. He is a global cyber law, data protection, IPR and privacy law advisory, may conduct vulnerability assessment, cyber security audit and IT policy, may conduct cyber crime investigation for top corporate groups. He may provide GDPR compliances for multinational organizations. He may conduct boardroom and other data theft investigation, cyber security advisory. He already trained 5,000 plus personnel of police and law enforcement agencies. He already trained 600 plus judges, judicial officers and public prosecutor. He conduct economic offense and fraud investigation for corporate and LEA, conduct email, WhatsApp, Facebook, Twitter and other social media investigation. He may conduct digital evidence analysis and advisory, conduct data recovery from computer, mobile, iPhone and other storage media, save in RBI mandated cyber security framework implementation, IRDI mandated cyber security framework implementation, fraud investigation in BFSI with legally tenable digital evidence. This is the brief profile of today's our very learned CS Anuj Agrawal ji's introduction. Before this, I request our former Central Council member Vijay Gupta ji kindly address our members, sir. Over to Vijay Gupta ji. सर एक मिनट बस जरा. थैंक यू राजेश अग्रवाल जी. वैसे तो मैं एकदम अचानक आया हुआ गेस्ट हूँ यहाँ पे, but really I'm privileged to have the company of all my friends here. So first of all, Rajesh Agrawal ji, congratulations that you are organizing so many good programs which are very relevant in the current days to our chartered accountant members. And you have invited the eminent faculty, which is the fittest faculty, I would say, on this topic, Anuj Agrawal ji. And wishing you all this a very good program.
which is going to benefit each one of you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Now I invite our very learned elder brother, CS Anuj Agrawal. Over to you, sir. Thank you, Rajesh ji, and thank you all the friends who have spared their time from the busy schedule for a discussion on this particular important topic. Today, we are going to spend time on understanding, as Rajesh ji very rightly said, about data protection, data privacy, especially compliance in the Indian and the global scenario. So we will take GDPR as the example of the global data protection and data privacy requirement, because that is one of the very nicely and very comprehensively drafted regulation, which is helping global companies and global governments to understand what the data privacy is all about, what data protection is required, what kind of a compliance, and it is not only saying that this is the compliance, it is also saying how to comply. So I think this is one of the very comprehensive piece of a legislation, GDPR, General Data Protection Regulation, which comes from the European Union regulation it is. We are also expecting a similar law which is before the parliament, and then parliament has referred to the select committee. Hopefully very soon the similar law will also be implemented in our country. It is already a bill which is likely to be passed in probably next monsoon session, especially after the recent spat with government and various social media companies, Twitter, WhatsApp, etc., and multiple cases before Honorable Delhi High Court and Supreme Court regarding the new privacy policy which WhatsApp is now forcing through the throat of users in this country. And also the lawlessness by which the social media platforms are tagging various information, various news, various tweets of various people. I am not talking about any particular party, but then a platform which should be neutral. Either you stop everybody or you let people decide. So there is a gap in terms of their policy, and at times it looks they are supporting X or Y or Z. Well, I am not supporting anybody. What I am only supporting is that the data should be protected, our privacy should be protected as an individual, and we as compliance professional must look at the interest of our own firms and the interest of our clients and employers. So in this context, we are going to discuss various regulations which are in place, India as well as global. Rajesh ji this time very specifically instructed me that no more typical cybercrime discussion. Please discuss about GDPR and data privacy and protection. And I think he's very right, because this is something which is relevant. Everybody is talking about it. In last 1 week, I had at least 3 or 4 high-level TV debates with at other side, the government, mygov.in CEO sitting, or some IG of the police sitting. And probably I had a different voice than obviously the government, because even on the government channel, I had the courage to speak on behalf of the people, the truth. So very briefly, we will see what the cybercrime is, and because after all, when we are talking about data protection, it is because that there is so much cybercrime and misuse of data, either voluntarily, deliberately, or by the criminal activities. So why so much cybercrime? Because today, if you look at the valuable asset, most valuable asset is being said is the data. At some point of time, it used to be the gold. Then when the oil was discovered, it was said that oil is the new gold, the black gold. And today, data is being called the new oil or the new gold, or is the gold. So obviously, the criminals will chase only that commodity which has got a value. कभी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के घर चोरी या डाका हो जाए जो बेचारा बहुत गरीब है और सरकारी सहायता से अपना घर का खर्चा चला रहा है. हमेशा जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है
वो बैंक्स के ऊपर होती है या ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों पर होती है जहां पर बहुत सारी दौलत या वेल्थ होती है। तो आज अगर हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्रिमिनल्स हमारे डेटा को अटैक कर रहे हैं, चाहे मैं एक इंडिविजुअल हूं, चाहे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या मिड साइज बिजनेस हूं, चाहे मैं एक गवर्नमेंट हूं, मैं एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हूं, हर जगह डेटा के ऊपर रिस्क आ रहा है एवरी डे। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, कम से कम 2 कंप्लेंट मुझे कॉर्पोरेट की तरफ से रैंसमवेयर की आ रही है कि साहब हमारी कंपनी में रैंसमवेयर आ गया। एंड दिस इज नॉट बिग कंपनीज ओनली, आई एम टॉकिंग, दिस इज टॉकिंग, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट मिड साइज, स्मॉल साइज, जहां 10 से 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, फर्म है, एक छोटी एमएसएमई है, वहां भी ये आज की तारीख में बिल्कुल रोजमर्रा की सी बात हो गई। जो लोग भी अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर या डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सजग नहीं हुए हैं, उसके लिए उन्होंने कोई तैयारी या ध्यान नहीं दिया है, आज वो सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसलिए शायद राजेश जी ने और इनके पास चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में और ये बहुत कार्यक्रम करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत एक्टिव है इनका ग्रुप, मतलब हर हफ्ते में कई सारे कार्यक्रम और तरह तरह के टॉपिक्स को लेके करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से मेंबर्स की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से इनको इनपुट आता रहता है कि भाई क्या दिक्कतें चल रही हैं और शायद ये रेलेवेंट प्रोग्राम्स को लाके रखते हैं। तो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च को देखते हैं, वो ये रिसर्च कहती है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच, यानी कि अगर डेटा चोरी हो जाता है तो फॉर 350 कंपनीज द कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड टू 3.79 मिलियन यूएस डॉलर्स। अगर हम अपने हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो ये करीब करीब 25 करोड़ 20 से 25 करोड़ का मसला आता है। तो अगर किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक ठाक साइज के ऑर्गेनाइजेशन में जहां 500,000 लोग काम कर रहे हैं, अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो उस कंपनी को करीब करीब 25 करोड़ का नुकसान सिर्फ डेटा ब्रीच की वजह से हो जाता है। और मैं आपको एक दूसरी चीज इंटरेस्टिंग बताऊं कि ये जो 25 करोड़ की बात हो रही है या जो आज डेटा को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स या किसी भी कॉर्पोरेट में अगर हम जाते हैं और हम कभी भी किसी खर्चे की बात करते हैं, कोई समस्या बताते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा। भाई अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा 50,000 का कंप्लायंस कॉस्ट है, तो अगर हमने इसको नहीं किया तो क्या हमारा 5 लाख 50 लाख या 5 करोड़ का नुकसान होने वाला है। अगर हमारा नुकसान भी 50,000 है और हमारा खर्चा भी 50,000 है तो ऑब्वियसली रोज तो नुकसान होता नहीं है, तो कुल मिला के इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखें, ये रिसर्च ये कहती है कि एक व्यक्ति के डेटा की वैल्यू लगभग 12,000 रुपए है, करीब 145 से 154 डॉलर आज बताई जा रही है। थोड़ी सी पुरानी स्टडी है, थोड़ा सा और भी अगर बढ़ गया, नहीं भी बढ़ गया है, 12,000 रुपए। तो अगर आपकी फर्म के लगभग 100 क्लाइंट हैं, बहुत ही छोटी फर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो 12,000 रुपए का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका कितना सीधा नुकसान हो जा रहा है। और अमूमन एक टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो 4-5 पार्टनर्स के साथ होती है, 500 क्लाइंट तो हम बड़े छोटे मिला के होते ही होते हैं। और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनके कई सारे अकाउंट होते हैं, कई सारे डायरेक्टर होते हैं, कई सारे लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, हम थोड़ी देर के लिए अमेजन, स्नैपडील की बात करें, 5 करोड़ 10 करोड़ यूजर्स हैं जो एक्टिव हैं। अगर 12,000 रुपए पर यूजर के हिसाब से आप कॉस्ट निकालें, आप बेटर निकाल पाएंगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है जो मैं इसको बता पाऊं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्नैपडील हैं और आपके यहाँ डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपका सारा बिजनेस कोई ले गया, क्योंकि अदरवाइज तो कोई बिजनेस है ही नहीं। व्हाट इज द बिजनेस? प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों ने दुकानें लगाई हुई है, अपना सामान बेच रहे हैं। आज लोग आपके प्लेटफॉर्म पे अपनी दुकान लगाने क्यों आते हैं? बिकॉज दे नो कि 5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग, 7 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अगर वो डेटा चोरी हो जाएगा तो कोई भी नया प्लेटफॉर्म खोल लेगा और वो 5-7 करोड़ एक दिन में उसमें जोड़ देगा और वो सबको ईमेल चली जाएगी, फोन चला जाएगा कि भाई आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। सो द वैल्यूएशन, जो फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन है $16 बिलियन, $16 बिलियन, और वो 20% बढ़ गई पिछले 2 सालों में। So where is the valuation coming? They do not have any assets, they do not have any godowns, they do not have any shop, they are only a platform, nothing else। वो प्लेटफॉर्म तो 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के कोई भी बना सकता है। आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म रेडीमेड आते हैं
जिसको आप शुरू करें अगले दिन आपकी ऑनलाइन शॉप शुरू हो जाएगी। रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलते हैं बाजार में, यू कैन स्टार्ट इट, एनीबॉडी कैन स्टार्ट इट, बट the kind of user database, their behavior, their habits, their pattern, their spending power, that how much they have bought in the past, every such information which these big platforms are now owning, that is what their value is. That is what, and it is also being said about the political parties. यहाँ पर कई पॉलिटिशियंस भी हैं, सेंट्रल काउंसिल के, रीजनल काउंसिल के मेंबर्स हैं, वर्तमान पदाधिकारी हैं, भूतपूर्व हैं और होने वाले भी हैं। सभी जानते हैं कि अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या जहां भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनका डेटा नहीं है तो आप लोगों से संपर्क कैसे करेंगे? कोविड में ना तो आप जाके मिल सकते हैं, ना कोई मेंबर आपको मिलने के लिए दूर से कह रहा है कि भाई साहब ठीक है, आपके पास तो डेटा ही नहीं है, उसकी ईमेल नहीं है, फोन नंबर नहीं है, तो आपका तो संपर्क ही नहीं होगा। एंड प्लीज माइंड नॉट, अगर आप मेंबर से एक बार संपर्क करके भी वोट नहीं मांगेंगे तो आप उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो आपको वोट देगा? So data is that much important, and because of this pandemic scenario, it has become more and more important. Shops तो सारी बंद पड़ी हैं, इस समय जो बिक्री हो रही है वो तो ऑनलाइन वालों की हो रही है, वही डिलीवरी कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए एज ए इंडिविजुअल मजबूरी है या अच्छी बात है, फायदा तो सारा उन्हीं लोगों का हो रहा है, वही लोग जानते हैं कि किसको क्या लेना है, इसलिए डेटा हैज बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, टारगेट नाम की एक कंपनी यूएस में, जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, तो उनके यहाँ एक बार डेटा ब्रीच हुआ, देयर वाज अ डेटा ब्रीच एंड दे लॉस्ट अराउंड 8 करोड़ यूजर डेटा एंड अराउंड 5 करोड़ 4 to 5 करोड़ डेबिट क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेटा। The cost to them was around $167 million, including compensation to users, legal cost, loss of value, loss of face value, गुडविल भी तो सर बहुत बड़ी चीज होती है जो इंटेंजिबल आप लोग बैलेंस शीट में लगा देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी मर्जी चाहे गुडविल बता दे, तो ये भी एक चीज होती है जो आपके हाथ में, बट ये सिर्फ कहने की बात है। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू अराइव एट द गुडविल। गुडविल इज नॉट व्हाट आई थिंक इज माय गुडविल, गुडविल इज नॉट व्हाट आई थिंक इज गुडविल ऑफ माय वैल्यू, माय फर्म, माय कंपनी। देयर आर formulas, there are scientific methods to calculate the goodwill of the company, and one of that is how much customer data, how much customer preferences, how much customer reach you already have. Now this is in the digital world, this is the top most value driver। अगर किसी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ानी है और इसीलिए आपके पास बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं कि हमारी कंपनी को ज्वाइन करिए, हम 200-400 रुपए का आपको कूपन दे रहे हैं। सर वो आपको 200-400 रुपए का कूपन देके 12,000 रुपए की जानकारी आपसे ले रहे हैं, क्योंकि एक यूजर के डेटा की वैल्यू करीब 12,000 है, तो आपको 200-400 रुपए फ्री देके वो आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको 1,000 भी दे रहे हैं तो भी वो 11,000 आपसे तुरंत कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन उतनी बढ़ती जा रही है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, अपने डेटा को, अपनी प्राइवेसी को एज एन इंडिविजुअल और एज ए बिजनेस दोनों साइड से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको मेंटेन करना है। अब सरकार भी इस पर सचेत हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये तो मेरा डेटा है, ये कंपनी क्यों यूज कर रही है, ये कंपनी उस काम के लिए क्यों यूज कर रही है जिसके लिए मैंने उसको दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करते हैं पॉलिसी के लिए, आप किसी अस्पताल में जाते हैं इलाज करने के लिए, अब अगर अस्पताल वाला आपका डिटेल, फोन नंबर, बीमारी वगैरह किसी कंपनी को दे देता है और वो आपको फोन करके बोलते हैं कि सर डायबिटीज में ये वाला टॉनिक पीजिए, ये ज्यादा फायदेमंद है, आपको कितना बुरा लगेगा? आप कहेंगे अरे अगर मैं किसी अस्पताल में या डॉक्टर से कंसल्ट करने गया अपनी किसी बीमारी के बारे में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डॉक्टर पूरी दुनिया को बताता चले कि यार मुझे क्या बीमारी है। दैट इज कॉन्फिडेंशियल। देयर इज अ इनबिल्ट और लीगल कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ क्लाइंट, a lawyer and a client, a doctor and a client, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक बैंकर का भी, जो उसके अकाउंट होल्डर्स है, उनके साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है। ऊपरी तौर पे अगर आप किसी को भेज के अपने अकाउंट डिटेल पता कराना चाहें तो बैंक मना कर देता है, कर देना चाहिए, लेकिन बैंक अपने एजेंट्स को, अपने पार्टनर्स को आपकी जानकारी शेयर करते हैं, तभी तो आपको कॉल करके कहते हैं सर ये वाला कार्ड ले लीजिए, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ढिकाना ले लीजिए।
उनको तो आपका ये भी पता होता है कि अकाउंट में कितने पैसे कितने दिन से पड़े हुए हैं, आपके सेविंग्स में कितने हैं, करंट में कितने हैं। कभी वो आपको बोलते हैं कि जी आप लोन हमारे पर ट्रांसफर कर लीजिए, होम लोन बदल लीजिए, फलाना ठिकाना। So all that confidential information which you have shared in confidence, say with your service provider, which may be a chartered accountant, advocate, your doctor, or your banker, or anybody, they are duty bound morally and legally not to share your data. But also there is a serious consequence if they are going to do. Now we are going to discuss these things today. Now some of the offenses which people are otherwise failing as part of the cyber crime, individuals को क्या problems आ रही है? Sex offenses, luring for money and sex, drug related offenses, illegal partying, rape parties, plain burglary and dacoity, defamation, bullying, stalking, pornography distribution, credit card, debit card, Paytm, e-commerce fraud, fake IDs, fake emails. कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, abuse and misuse of computing assets, ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है और आपका आराम से यूट्यूब पे मूवी देख रहा है, तो भाई ये तो आपके कंप्यूटर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। कंप्यूटर आपने किसी को अपने ऑफिस में क्यों दिया है? ऑफिस का काम करने के लिए, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोफेशन है। लेकिन वो बंदा क्या है, घर पे दिन पे बैठ कर चैटिंग कर रहा है कंप्यूटर पे, या अपने घर के लिए ग्रोसरी खरीद रहा है। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव, राइट? ईमेल अब्यूज, आप कंपनी के ईमेल से पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं, इंटरनेट अब्यूज कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं खूब सारी चीजें, 5 GB 4 GB, और बाकी लोगों को काम करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि सारा डेटा जो आपकी बैंडविड्थ है, जो आपकी पावर है इंटरनेट की, वो उसके डाउनलोड में लग जा रही है। पोटेंशियल क्रिमिनल कंडक्ट यूजिंग कंपनी प्रीमाइसेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड अदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है जो बिटकॉइन होते हैं ये कैसे क्रिएट करे जाते हैं? बिटकॉइन की माइनिंग या मिंटिंग होती है, उसके लिए बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में उसको बैकएंड से चालू कर दीजिए तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज होगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर में जो आपकी बैंडविड्थ है, कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज है, वो यूज होती है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। और बहुत सारे क्रिमिनल आपके कंप्यूटर्स पे कंट्रोल करके चुपचाप अपने बिटकॉइन मिंट करते रहते हैं। उनको तो $50,000 का एक कॉइन मिल जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। आप कहते हैं यार मेरा बिल बहुत आ रहा है, मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, मेरा फोन बहुत स्लो हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कितने लोग फोन में कहते हैं अनुज जी बड़ा फोन स्लो हो रहा है, मैं कहता सर बिटकॉइन की मिंटिंग कर रहे हो? नहीं सर हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जानते भी नहीं। तो कोई और कर रहा होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई और कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने ₹250 वाला वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया नहीं। और अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब 5-6 हजार रुपए खर्च करके एक एंड पॉइंट सिक्योरिटी अच्छा सा लगा लो थ्रेड स्पाइक, तो आप मुझ पर नाराज हो जाओगे। अरे भाई साहब ये तो फ्री सेमिनार में आप तो सेल्स मैनी का काम कर रहे हो, उसके बदले में आपका ₹50,000 का नुकसान हो जाएगा। कोई क्लाइंट आपको कहता है भाई साहब जूम पर आ जाओ, मीटिंग अगर सक्सेसफुल हुई तो आपको मैं 50,000 का ये अकाउंट दे दूंगा, लेकिन वो चल नहीं रहा है, आपका स्लो हो जा रहा है क्योंकि उसमें बिटकॉइन की मिंटिंग चल रही है किसी के लिए, आप उसको रोकना नहीं चाहते। ये फैक्ट है। मेरे पास कितनी कंप्लेंट्स आती है, मैं आपको क्या बताऊं। फाइनेंशियल फ्रॉड, इंडस्ट्रियल एस्पेरेज, कॉर्पोरेट सबोटेज, एम्बेजलमेंट, डेटा थेफ्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते चलें, समझते भी चलें। ध्यान से देखिएगा।
देखिए हमने एक वीडियो आपको दिखाया, आपने देखा होगा कि अचानक अटैक हुआ, अचानक हमला हुआ, और जो एक खतरनाक एनिमल भी था, एक चीता भी था, एक में तो हिरण था, वो अचानक उनके ऊपर हमला हुआ और वो पानी में चले गए और नाश्ता बन गया। इसको हम लोग वाटरिंग होल अटैक्स कहते हैं। इंटरनेट पर भी ऐसे ही होता है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया। इंटरनेट पे जब हम सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, जब हम ईमेल खोल रहे होते हैं, हमारे पास अच्छी सी ईमेल आती है कि मैं फलाना फलाना नाइजीरिया से, साउथ अमेरिका से, फलाना मेरे फादर इतना 5 करोड़ रुपए मेरे लिए छोड़ के चले गए, आप मेरे ट्रस्टेड पर्सन हो, तो हम आपको ये ट्रांसफर करना चाहते हैं। राजेश जी बड़े खुश हो रहे हैं। जहां पैसे की बात आती है तो चार्ट अकाउंटेंट तो खुश होंगे, होना भी चाहिए, मैं उससे गलत नहीं हूँ। ये सर मेल आती रहती है, इसलिए मैं क्या हंस रहा था सर। ये आती रहती है, आपको काफी आती रहती होंगी, तभी मुझे लग रहा है 2-4 करोड़ आपके आ भी गए हैं, तभी आप खुश भी हो रहे हो। वरना तो लोग दुखी हो जाते हैं, जिनको कोई परेशानी रहती है, लगता है आ गए आपको। खैर चलिए, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। अब की बार मिलेंगे तो मर्सिडीज में, और फिर चलेंगे आपके साथ नाश्ता करने के, 5 स्टार में बैठेंगे। तो ऐसी मैसेज आती रहती हैं, और फिर हम लोग उसको क्लिक करते हैं, उसमें अपनी बैंकिंग डिटेल दे देते हैं, या 1-2 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। सडनली भी रियलाइज कि वो तो कोई क्रिमिनल था, जो हमारा जो बचा कुचा पैसा था, जो हमारे हार्ड अर्न मनी थी, वो भी चली गई। तो ये हम लोग कहते हैं वाटरिंग होल अटैक। इतनी आती है, बिलीव हो जाता है। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बने हुए हैं, बिलीव हो जाता है। कोई कुछ बोलता है, जी मैं अमेरिका से इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहा हूँ, आपके साथ ये करना चाहता हूँ, वो कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। लोग तैयार हो जाते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए हुई चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज वाटरिंग होल अटैक। अनजाने में, जहां पर हमें रिस्क नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है तालाब है, पानी भरा है, पानी पीना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जंगल में जब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे? तालाब पर जाकर पानी पी लेंगे। लेकिन इंटरनेट पर भी जब हम जाते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है बड़ा सुंदर सा, भाई 50 इंच का टीवी 5000 में, भाई रीबॉक के शूज 500 में। और आजकल एक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है तो रिलायंस आपको 1 साल का फ्री रिचार्ज दे रहा है। अरे भाई अंबानी साहब किसी को फ्री देंगे तो उनकी कंपनियों का जो अरबों खरबों का वैल्यूएशन हो रहा है, उसका क्या होगा? अगले दिन तो उनका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। ये तो फ्री बांट रहे हैं। वो फ्री वाला टाइम निकल गया। वो फ्री में तब देते थे जब उनका फोन चलता नहीं था, जब उसमें सिग्नल नहीं आता था, जब वो एयरटेल में कनेक्ट नहीं होता था। अब तो सारे काम ठीक हो रहे हैं उनके, अब वो क्यों फ्री देंगे? लेकिन हम ये नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि वो अभी भी उतने ही दान दाता है जितने पहले हुआ करते थे 3 साल 4 साल पहले। ऐसा नहीं है, समय बदल गया। लेकिन हमारी सोच फ्री के माल को लेकर बदली नहीं होती है। हमें हमेशा यही लगता है कि यार आने दो। करोड़पति आदमी भी 50 रुपए के सैनिटाइजर लेने के लिए मर्सिडीज से अपने ड्राइवर को भेज देता है, बोला यार मिल रहे हैं तो ले लो ना। 5000 रुपए का नाश्ता कर लेंगे, लेकिन 250 रुपए की कोविड की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उसके लिए अल्लाह गुल्ला मच गया कि यार ये तो बड़ी महंगी है। So somewhere down the line, when we get those offers which are unbelievable, we are probably getting into a watering hole attack. मेरा कहने का ये मतलब था। और कॉर्पोरेट में जो बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी ये मानसिकता है कि फ्री का माल प्राप्त कर लिया जाए। अब थोड़ा सा डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स को समझते हैं और फिर कानून को समझते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी क्या चीज है। आर वी रेडी? थक तो नहीं गए? नहीं सर, नहीं सर। नहीं तो चाय भाई मंगवाई जाए, वर्चुअल चाय ऑफर कर सकते हैं ना आपको। जी जी सर, जी सर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनल डेटा है क्या चीज। कई बार हम लोग कई टर्म्स को यूज करते चले जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट इट इज। प्राइवेसी की हम लोग सुबह शाम बात करते हैं, दिन में 10 बार बात करते हैं। डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट प्राइवेसी वी आर टॉकिंग अबाउट? एज फार एज इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजैक्शन इज कंसर्न, business is concerned, personal data is any information that relates to an individual who can be directly or indirectly identified,
So personal data is anything which can finally lead to identification of the person. So when somebody says chartered accountant Rajesh Kumar Agarwal, okay, understood that he is somebody whose name is Rajesh Agarwal and is CA. But there can be so many people who may be chartered accountant but still the name Rajesh Agarwal. Then Rajesh Agarwal who is in Karol Bagh. Now that brings very closer to our own Rajesh Agarwal ji. There might be couple of more people, maybe 3, 4, 5 Rajesh Agarwal ji in Karol Bagh, chartered accountant. And then we say, no, who is running the study circle for chartered accountants for many years and who is organizing so many programs. Now, if we put all this information together, we have 99.9% chance of reaching out to that Rajesh Agarwal ji which is available in this screen. So any information which can be used to directly or indirectly identify the person whom we are talking to, although we otherwise not knowing about that person. So somebody's name, maybe with address, with phone number, with email, his official designation, his PAN number, his Aadhaar number, his DIN number, things like that, bank account number. If we have that kind of a collection of information, we are talking about personal data. We are holding personal information. Names and email addresses are obviously personal data. Location information, ethnicity, gender, biometric data, religious beliefs, web cookies, political opinions can also be personal data. Sambit Patra. Now, Sambit Patra can be so many Sambit Patras. But when you say Sambit Patra, who is BJP, that takes you very closely to the person, Mr. Sambit Patra, who is on the TV, who is a BJP person, because his political beliefs are so well known that anybody who talks about that political beliefs, anti-Congress and Sambit Patra, that person's face comes to immediately your mind. Now, who is a data subject? The person whose data is processed is a data subject. Obviously, your customers, your site visitors, your clients. Then who is a data controller? The person who decides why, and this is what we are talking about GDPR now. Please understand, we have started the topic GDPR. Data controller, the person who decides why and how personal data will be processed. If you are an owner or employee in your organization who handles data, this is you. So every chartered accountant is a data controller because they are the person who decide why and how personal data will be processed in their firms and in their companies also. Because either he is running his own firm, a chartered accountant firm where a lot of customers will be giving them work regarding income tax and all that, or they may be looking after finance and accounts. Finance accounts obviously deals with the person and personal data. So I think data subject and data controller is very clear. Now data processing, data processor, any action performed on data, any action, whether automated or manual. So you have put a lot of data in your Excel sheet. Say for preparation of individual client profit and loss or for company balance sheet. And then you say, I am actually not doing any processing. I am just entering one information. Says basic salary. But everything else is already designed in the Excel sheet. So the process is automated. It is also part of the data processing, or if you are doing it manually. The example may include collecting, recording, organizing, structuring, storing, using, erasing. So basically anything. So you have got data, personal data, and if you are manipulating that personal data in any manner, even for the benefit of the customer itself, it is called data processing. So then who is a data processor?
a third party that processes personal data on behalf of a data controller. So if you are processing data, you are either a controller or a processor. If you are doing it yourself, you are a controller. And if you have given it to somebody else to do it on your behalf, you are a data processor. The GDPR has special rules for these individuals and organizations. They could include cloud servers like Terraform, or you have Amazon Cloud, and all other cloud service providers, Microsoft Cloud, etc. और email service providers, Proton Mail हो सकता है, Gmail हो सकता है, GoDaddy पे आपकी अपनी email हो सकती है, वगैरह वगैरह. डेटा प्रोटेक्शन के क्या प्रिंसिपल्स हैं? नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन? बिकॉज it is true that personal data needs to be protected. By whom? By controllers and processors. But it is also obviously a need of the client, everybody's clients, be it a corporate or a firm, that finally whatever information they are providing to you, they are expecting, say, you to calculate the income tax and file the return. So you will be doing the data processing. That's very logical because he has asked. But then when you are doing it, what you should be doing and what you should not be doing is what we are talking data protection principles. So the client has given you as an individual, your firm or an organization, certain data. A patient is giving his health condition to his doctor, but it does not mean that doctor should put it on a whiteboard or on an electronic board and put it on the चौराहा ऑफ द सिटी कि भैया ये आदमी मेरे पास आया था, इसको ये बीमारी है, अगर कोई व्यक्ति इसकी मदद करना चाहे तो ही वेलकम. नो, the expectation is that whatever data has been shared with you, that is in confidence, and you should process and handle and store it in a professional manner using these principles. अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? 7 प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल्स, वो आपको फॉलो करना है. Number 1, lawfulness, fairness, and transparency. So the processing must be lawful, fair, and transparent to the data subject. मान लीजिए आपके पास, आप एक डॉक्टर हैं, कोई अपना कान दिखाने आया और आपने कहा भाई ठीक है, आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मुझे और लग रहा है, ये दूसरे स्पेशलिस्ट को आपको चेक कराना है, या आपको चेस्ट पेन लेकर आया, आप फलाने स्पेशलिस्ट से हेड न्यूरो सर्जन से भी या न्यूरो वाले से भी चेक करना है, और आप अगर कहें तो मैं आपके पेपर फलाने डॉक्टर साहब को भेज देता हूं, आप वहां चले जाइए, मैं उनको आपका हाल भी बता दूंगा अच्छी तरह से, आप जाके खाली कंसल्ट कर लीजिए. तो ये आपको पेशेंट को बता के उसकी कंसेंट लेके करना. अगर वो कहते नहीं साहब रहने दीजिए, वो मैं खुद देख लूंगा, मैं अपने पहचान की है डॉक्टर साहब, मैं उन्हें इस मामले में कंसल्ट करना चाहता हूँ. तो आप ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट को फिर भी आप उसकी इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि भाई ऐसा करो, किसी से बोलना, उसको फोन करके थोड़ा धमकाएगा कि तुम्हारे सिर में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, ट्यूमर हो रहा है, अगर तुमने अपना मेरे से इलाज नहीं कराया तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है. नो, दैट्स नॉट. Somebody has shared his health condition with a certain doctor in confidence. Now you cannot take undue advantage, unlawful advantage नहीं ले सकते आप. You cannot be unfair, you cannot be non-transparent. And this is just an example. Obviously, nobody is going to do it. Purpose limitation. जिस पर्पस के लिए आपको डेटा शेयर किया गया है, आपने वही करना है. चार्ट अकाउंटेंट को किसी ने अपनी इनकम के बारे में, सैलरी इनकम के बारे में बताया, भाई मेरी 10 लाख सैलरी इनकम है, ये मेरा ब्रेकअप है, तो और आप मेरी रिटर्न फाइल कर दीजिए. आप उसको इंश्योरेंस नहीं बेच सकते कि भाई ऐसा करो, तुम पहले हमसे 50,000 रुपए का इंश्योरेंस खरीद लो. नो, you have got a purpose limitation which is decided by the data subject himself or herself while sharing the data with you. Any processor is duty bound by the purpose limitation. जो डेटा प्रोसेसर है, वो डेटा प्रोसेसर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो है, जब डेटा को प्रोसेस कर रहा है
वो पर्पस जो उसके क्लाइंट ने सेट किया है वो उसको ब्रीच नहीं करेगा। डेटा मिनिमाइजेशन, द डेटा कैन बी कलेक्टेड, यस, फॉर प्रोसेसिंग, यस, फॉर लीगल लॉफुल पर्पसेस, यस, बट दैट शुड बी मिनिमल डेटा। अब आपने कहा जी वो तो हमारे पास खुद ही इलाज कराने के लिए आया था, वो हमारे पास रिटर्न भरने के लिए आया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको पूरे परिवार की जानकारी ले लोगे उससे, until unless it is really relevant कि भैया कितने भाई हैं तुम्हारे, अच्छा बोलो क्या बिजनेस करते हैं, या उनकी कितनी इनकम है, अच्छा उनकी रिटर्न फाइल होती होगी, भाई उनको कहना मेरे उनका नंबर मुझे दे दो, आई विल टॉक टू देम इमीडिएटली, यू आस्क समबडी इन द ऑफिस कि भाई इन 4 लोगों को फोन लगाओ, उनको बोले यार हमसे रिटर्न क्यों नहीं फाइल कराते हो, थिंग्स लाइक दैट। आई एम जस्ट टेकिंग वेरी हाइपोथेटिकल। So you should collect only the minimal data from the data subject for the purpose, legal purpose, transparently, accuracy. You must keep personal data accurate and up to date. So processing इस तरह से नहीं होगा कि उसका डेटा की accuracy खत्म हो जाए। Storage limitation, you may only store personally identifiable data for as long as necessary for the specified purpose. किसी लॉयर के पास किसी भी समय क्लाइंट आकर ये बोलता है कि साहब अब हमें आपसे केस नहीं कराना, हम इसको किसी दूसरे लॉयर के पास ले जाना चाहते हैं, आपके पास लिमिटेड बातें होती हैं करने के लिए, वो ये कि भाई आपका कोई पेमेंट वगैरह रहता है या कोई जो ऑब्लिगेशन डेटा सब्जेक्ट का है जो कि प्री ऑब्लिगेशन है, उसको फुलफिल करने के बाद यू आर सपोज टू रिटर्न दिस फाइल। That is what storage limitation. But as and when the purpose for which the data has been shared with you by the data subject, you will have to delete, return whatever is the requirement, expectation of the subject. इसी से बना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, राइट टू फॉरगेट। Right to forget is the one very, very important principle which has come out of the GDPR, and fortunately even before the law has come into our country, Honorable Delhi High Court in recent judgments have reiterated and given orders to this effect that everybody has got a right to forget. In that particular case, a person who was a non-resident Indian came to India and got into some criminal case. Later on, he was acquitted from that case. But what was happening, that the various law websites and other places were keeping all these details. Obviously, that is the reportable judgment. But because of this particular information being kept in these portals, that person was not able to get any job, etc. Because the moment somebody checks about his background, he says, "अरे यार इसके ऊपर तो क्रिमिनल केस चल चुका है, नारकोटिक्स का केस चल चुका है, मर्डर का केस चल चुका है, फलाना ठिकाना, शायद वो झूठा केस था तभी तो छोड़ दिया अदालत ने." So then he went to the Honorable High Court saying, "Sir, because my information is publicly available, although I have been exonerated by Honorable Court after due trial as per law, because this information is unnecessarily available, which is no more relevant, because अभी तो मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया, बरी कर दिया, I am not able to get any employment, and there is a question of my life and death, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो मैं अपना कैसे सर्वाइव करूंगा?" तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सभी लोग जो इनके रेफरेंस को अपने आप मेंटेन कर रहे हैं वो उसको हटाएं, क्योंकि ये एक स्टोरेज लिमिटेशन का सवाल है कि भाई जिस पर्पस के लिए डेटा दिया गया था, अब अगर वो सब्जेक्ट उस पर्पस को नहीं चाहता तो कोई राइट नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे। You have got no right. Integrity and confidentiality. Processing must be done in such a way as to ensure appropriate security, integrity, and confidentiality. For example, by using encryption. अगर मान लीजिए डेटा आपके से हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो अगर एनक्रिप्टेड है तो कम से कम उसका मिसयूज तो क्रिमिनल नहीं कर पाएंगे। आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी है डेटा की। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने अपने कंप्यूटर में रखा था, मैंने तो किसी को दिया नहीं, बट किसी हैकर ने हैक कर दिया। अगर एक डॉक्टर ये कहता है कि साहब हैकर ने हैक कर लिया मेरा डेटा और पेशेंट का डेटा सबको नोन हो गया,
ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये अलाउड नहीं है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और ये इंडियन लॉ में भी है, 5 करोड़ की पेनाल्टी और कंपनसेशन आपको एक व्यक्ति को देना पड़ सकता है अगर किसी एक व्यक्ति का भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है। मैं इस पर भी आऊंगा। अकाउंटेबिलिटी, द डेटा कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग एबल टू डेमोन्स्ट्रेट जीडीपीआर कंप्लायंस विद ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। अब ये 6 प्रिंसिपल तो ठीक है, हमने सुन लिए, और हमने लिख दिया अपनी दुकान के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, वी आर जीडीपीआर कंप्लायंट। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हलवाइयों के डब्बों पे लिखा होता है, दुकानों पे लिखा होता है, हमारे यहाँ देसी घी का प्रयोग होता है। राजेश जी, ऐसे आपके यहाँ काफी क्लाइंट होंगे जी जो सर। लिखते होंगे जी देसी घी का ही प्रयोग करते हैं सिर्फ। जी सर, जी सर। लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या वो देसी घी का प्रयोग करते हैं, मान लिया जाएगा? जनरल टर्म में से तो यार सारे लोग यही मानते हैं कि हाँ ये देसी घी बिल्कुल सही कहा आपने, मानते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद है कि सही बोल रहे होंगे। लेकिन जो छापा मारेगा फूड डिपार्टमेंट, और वो कहेगा साहब देखिए हमारी तो दुकान के बाहर ही लिखा हुआ है, बोले भाई ये कुछ नहीं, हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल को चेक करेंगे, और उस सैंपल में अगर ये पाया गया कि आपकी हर चीज में देसी घी का प्रयोग है, तभी हम ये मानेंगे कि आप देसी घी का प्रयोग करते हो, वरना हम आपकी इस बात को लिखे होने से सिर्फ नहीं मानते। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को जीडीपीआर कंप्लायंट लिख देते हैं, बोले वेबसाइट पर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को क्या पता करेगा कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। हम तो इन किसी प्रिंसिपल को नहीं मानते, हम तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखते, हम तो कोई सिक्योरिटी नहीं करते, क्या कर लेगा कोई हमारा, हमने तो बाहर ही लगा दिया बोर्ड पे। क्यों साहब? जैसे किसी ने कहा कि साहब दुकान में मक्खियां बहुत आ रही हैं, क्या करें, बोले यार बाहर लिख तो दिया है मक्खियों का प्रवेश निषेध है, अब पता नहीं फिर भी अंदर क्यों आ रही हैं। तो साहब बोले भाई हमने तो लिख दिया कि आना मना है, फिर भी आ रही है, बताओ क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। अब ये तो उनकी गलती है, भाई आना नहीं चाहिए, हम तो मना कर रहे हैं। अरे भैया हमें सभी को पता होना चाहिए कि मिठाई की दुकान में मक्खियां आती हैं, आपके लिखने या सोचने से नहीं होगा। उसके लिए क्या व्यवस्था आपको करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए कोई जाली लगानी पड़ेगी, कोई ऐसी वहां पे कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा, या जो भी है कांच में रखना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, कि आपके ग्राहक तो देख सके लेकिन मक्खियां वहां तक ना पहुंच सके। तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। So the data controller is responsible for being able to demonstrate GDPR compliance with all of these principles. Otherwise, they will be penalized. और कितनी पेनाल्टी है? 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। तो अगर आपका पूरा दुनिया भर में व्यापार फैला पड़ा है, खाली इंडिया में नहीं, और मान लीजिए आप 1000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, तो 4 करोड़ रुपए की पेनाल्टी तो लगी जाएगी। अभी ब्रिटिश एयरवेज का जो डेटा चोरी हुआ था 2 साल पहले, तो उनको 20 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी की पेनाल्टी लगी, फटाफट 20 मिलियन पाउंड की। तो दैट वाज द मैक्सिमम उनके जो अपना टर्नओवर वगैरह के हिसाब से जो कैलकुलेशन निकाला था, तो 20 मिलियन पाउंड आया, तो 20 मिलियन पाउंड उनको पेनाल्टी लग गई, क्योंकि डेटा ब्रीच हो गया, उनका चोरी हो गया। तो एक तो आपकी बदनामी हुई, डेटा ब्रीच होता है। दूसरे, इंडिविजुअल सूट आपके ऊपर हर आदमी क्लेम डाल देगा। ठीक है, आपका अगर मार्केट में लिस्टिंग भी है कंपनी, तो शेयर मार्केट भी डाउन हो जाएगा। अगली बार कस्टमर भी आने से पहले हिचकिचाएंगे, बोलेंगे भाई इनकी कंपनी में मत जाओ यार, ये तो डेटा ध्यान से देते नहीं। अगर एक बार किसी देसी घी की मिठाई की दुकान पर छापा पड़ जाए और अखबार में निकल भी जाए गलती से भी कि भाई इसमें मिलावट पाई गई, तो आधे से ज्यादा कस्टमर तो यही भाग जाएंगे, बोले भाई इससे फायदा क्यों लेने का, ये तो यार रेट बुरा लेते हैं, और देसी घी चाहे वो बाद में छूट जाए ट्रायल में, लेकिन बदनामी हो जाती है। इसलिए हर बिजनेस को अपनी गुडविल बनाए रखना बहुत जरूरी है। और आज किसी की अगर प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डेटा की प्राइवेसी को, डेटा के प्रोटेक्शन को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखे। मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर स्पेसिफिक रूल जो इंडिया में एप्लीकेबल है उस पर भी आने वाला है। अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जीडीपीआर से डेटा कंट्रोलर्स हैव टू बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट, तो डेटा कंट्रोलर्स इंक्लूड डेटा प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर तो कंट्रोलर के बिहाफ पर ही काम कर रहा है ना, वो तो थर्ड पार्टी है। दे आर जीडीपीआर कंप्लायंट एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू आफ्टर द फैक्ट।
एक बार आपके यहाँ छापा पड़ गया फिर आप देसी घी खरीदना शुरू नहीं करोगे, आप उसके पहले से देसी घी का पूरा इस्तेमाल प्रॉपर करोगे। If you think you are compliant with the GDPR but can't show how, then you are not GDPR compliant. तो अगर आपकी दुकान में विलायती घी का डब्बा रखा हुआ वो मिल गया तो फिर ये माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए ऐसी चीज को दुकान में भी नहीं लाना है, ऐसी चीज को ख्याल में भी नहीं लाना है कि थोड़ी देर के लिए डेटा प्रोटेक्शन हटा देते हैं। नो। अब इसको कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं? By designating data protection responsibility to the team, maintain detailed documentation of the data you are collecting, how it is used, where it is stored, which employee is responsible for it, etc. अब क्या होता है, हर जगह vicarious liability owners की मैनेजरियल पर्सनल की, जिसमें CFO भी है, CEO भी है, डायरेक्टर है, फर्म है तो पार्टनर्स हैं। अब वो कहते हैं यार हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमारी इतनी बड़ी फर्म है, 50 में चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए हुए हैं, कौन क्या कर रहा है, हर चीज हम थोड़ी ना देखते हैं। तो भैया फिर आप एक हायरार्की बनाओ और उस हायरार्की में जो एक डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक आदमी को डेजिग्नेट करो, एक पार्टनर को या किसी सीनियर एम्प्लॉय को, जो खुद ही इंश्योर करे कि भाई जो भी नियम कायदे हैं, जो 6 प्रिंसिपल साथ बताए गए हैं इंक्लूडिंग अकाउंटेबिलिटी, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। ट्रेनिंग कराओ अपने स्टाफ की, जैसे राजेश जी आज ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं, फ्री प्रोग्राम है बिल्कुल। अब देखना ये है कि इसको कितने लोग फॉलो करते हैं। ट्रेन योर स्टाफ एंड इंप्लीमेंट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी मेजर्स, उसका पूरा डॉक्यूमेंट करिए, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करिए, और टेक्निकली एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे थ्रेट स्पाइक वगैरह है उसको लगाइए, फायरवॉल लगाइए। आपके यहाँ जो भी सिक्योरिटी के टूल्स की रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, the size of your business, उसको आप लगाइए। Have data processing agreement contracts in place with third parties। अब आप तो डेटा कंट्रोलर हैं, आपने तो थर्ड पार्टी को दे दिया सारा डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसके साथ इतना कड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि जो सिक्योरिटी नियम आप पर लागू होते हैं वो उस पर भी लागू हो। ऐसा नहीं हो कि वो उस पर नियम कोई लागू नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पर तो बड़े कड़े नियम थे एक्साइज के, छोटी जो MSME थी उस पर नियम लागू नहीं थे, वो एक्साइज फ्री थी, तो सब लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के मैन्युफैक्चरिंग का किसी देते थे, छोटी छोटी कंपनियों को एक्साइज से बचने के लिए, यू नो, एंड देयर वर वेज एंड मींस। आई एम सेइंग इट इज अ प्लानिंग, बट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आप खुद करें या किसी थर्ड पार्टी से कराएं, नियम बराबर है, कोई छूट इसलिए नहीं है कि आपने थर्ड पार्टी को दे दिया और थर्ड पार्टी अब क्या कर रही है आपको पता नहीं है। नो, यू रिमेन इक्वली रेस्पॉन्सिबल whether you are doing it yourself as a controller or you are giving it to third party as a processor। and appoint a data protection officer, एक आप DPO बना दीजिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी DPO बन सकता है। ये हमारे जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है that the chartered accountants can be DPO। राजेश जी एक DPO का कोर्स चलाइए, छोटा सा कोर्स करेंगे और अपने सभी मित्रों को DPO बना देते हैं, क्योंकि हमारा भी कानून इंडिया में आने वाला है, उसमें भी DPO की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम सभी लोगों को, अपने मित्रों को इनेबल कर देते हैं अभी से कि भाई जब DPO का रिक्वायरमेंट कंपनीज में आएगा तो वो ये भी रोल ले लें। ऑब्वियसली उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनकी सैलरी या जहां पर भी, इवन थर्ड पार्टी कैन बी DPO। तो जो प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी DPO बन सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग करेंगे और उस ट्रेनिंग में हम लोग समझेंगे कि DPO क्या होता है, कैसे बना जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, तो एक DPO अपॉइंट कर दिया जाए। अब लोगों के प्राइवेसी राइट्स क्या हैं? If you are a data controller and or a data processor, but as a person who uses the internet, you are also a data subject. The GDPR recognizes a litany of new privacy rights for data subject, which aim to give individuals more control over the data they loan to the organization। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ी ग्लोबल बहस चल रही है। Whose data it is? I am saying it is my data, but when I give it to the company, they actually treat it as their own data। हमारा जो डेटा फेसबुक पे जा रहा है, व्हाट्सएप पे जा रहा है, ट्विटर पे जा रहा है, वो तो उसे बेच रहे हैं और हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वो हम मालिक हैं तो हमारी कोई चीज अगर किसी थर्ड पार्टी को थ्रू बिक रही है तो हमें तो मिलना चाहिए। What is happening? So they are recognizing that data is being loaned to these third parties, these platforms,
and there is a lot of debate going on that if they are making use of that data, taking it from free from me, वो कहते हैं हम आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, हम करें आपको फ्री में डेटा दे रहे हैं, हम 1200 रुपए का डेटा आपको फ्री में दे रहे हैं, आप मुझे फ्री में सर्विस नहीं दे रहे हैं। अगर आप ईमेल पेड वाली भी लेते हैं तो 200-300-400 रुपए की मिलती है सालाना, और डेटा कितना दे रहे हैं हम 1200 रुपए जीमेल को देते हैं फ्री में, वो हमारी सारी मेल पढ़ता रहता है और हमें एडवर्टाइजमेंट भेजता रहता है। अगर आपको बॉम्बे जाना है तो किसी ट्रैवल पोर्टल का आपको एडवर्टाइजमेंट आने लगता है। दिक्कत तब होती है कि जब कुछ लोग खाली समय में बैठ कर लिंगरी के ऐड देखने लगते हैं, और जब ऑफिस में या प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वहां पे लिंगरी के ऐड आने लग जाते हैं। तो भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। इसलिए कुछ भी फ्री नहीं आप दे रहे हैं, आप अपनी महत्वपूर्ण चीज, कॉस्टली चीज आप लोगों को दे रहे हैं। पर ये बहस अभी चल रही है। तो ये हमारे कुछ डेटा सब्जेक्ट के राइट है। एज एन इंडिविजुअल मेरे क्या राइट है? अभी तक हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे कंपनी की, अब मेरे अपने राइट क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, द राइट टू एक्सेस। मेरा डेटा है तो मुझे एक्सेस मिलनी चाहिए, मेरा डेटा है मुझे पता चलना चाहिए कहाँ जा रहा है, किसको शेयर किया जा रहा है। द राइट टू रेक्टिफिकेशन, मुझे अपने डेटा में बदलाव करने की राइट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपली स्पीकिंग, somebody's marital status has been changed say over last 6 months. Somebody, when they enter their information, they are not married, while now they are married, they should be able to change their status. Otherwise क्या होता है, वो भारत मैट्रिमोनी.com लगातार उसको मैरिज के प्रपोजल भेजे चले जा रहा है। Now that person wants to go and say no, look, please don't send, my status is now changed to married. The right to erasure, right to forget, जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि because of certain scenario in my life, I want my data to be totally erased. I don't want Google to show up certain things about me, good or not so good. I don't want it. I want to change it. The right to restrict processing, because I have given you data to the data processor or to the data controller for a particular restricted purpose. I do not want you to use this data for any other purpose. The right to data portability, I have a right to take my data from one platform to other platform. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लॉयर के केस में अगर कोई क्लाइंट अपना केस किसी दूसरे लॉयर के पास ले जाना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार से आज अगर मैं अपनी वेबसाइट GoDaddy पर रखता हूँ और कल को मैं इसको किसी दूसरी जगह होस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे रोका नहीं जा सकता। डेटा पोर्टेबिलिटी हैज टू बी अलाउड। इसी तरह आप देखिए इंश्योरेंस में अब हो गया है, आप इस साल किसी एक पार्टी से इंश्योरेंस कराइए, अगले साल दूसरी पार्टी से इंश्योरेंस कराइए दूसरी कंपनी से, तो आपकी जो इंश्योरेंस की हिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाती है। बहुत साल पहले, जो लोग बहुत यंग नहीं है, आज से आई थिंक 5-7 साल पहले तक ये फीचर अवेलेबल डेटा पोर्टेबिलिटी का नहीं था और दूसरी जगह से कराने में बड़ी दिक्कतें आती थी, वो अलाउ नहीं करते थे या हिस्ट्री नहीं देख पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। The right to object, I can object the way my data is being projected. अगर मैंने अपनी प्रोफाइल आपको दी है, आपकी वेबसाइट पर डाली है और आप उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ट्विटर पे डाला और आपने उसको ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट में डाल दिया, तो आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट कि भाई आप इसे कैसे कह सकते हैं। यू कैन नॉट सिट इन द जजमेंट, यू आर नॉट अलाउड बाय लॉ टू सिट ऑन जजमेंट वेदर माय thought which I am posting on say Twitter, whether it is objectionable, whether it is hate, whether it is creating nuisance in the society. No, you cannot. You do not have that power. Only the lawful agencies as per the constitutional mechanism, those agencies and the courts which have been allowed to look into that, they only can do that. Rights in relation to automated decision making and profiling. अब क्या होता है वो प्रोफाइलिंग कि आपने डेटा दिया और उसको एक गुंडा प्रोफाइल दे दी, एक सस्पेक्ट की प्रोफाइल दे दी, तो सब लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में कि ये आदमी निगेटिव है। जैसे आज हम लोग देखते हैं अखबारों में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी को राइट विंगर बोलते हैं, किसी को लेफ्ट विंगर बोलते हैं, किसी को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं, किसी को हिंदू विरोधी बोलते हैं। कौन, किसने डिसाइड किया है? ये मेरी एक प्रोफाइल बना दी कि ये हिंदू विरोधी है, जबकि मैं तो हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं तो भगवान राम का उपासक हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी ट्वीट पढ़ के या मेरी इंफॉर्मेशन पढ़ के एक ओपिनियन बनानी शुरू कर दी, एक मेरी प्रोफाइलिंग कर दी। तो ये राइट्स है मेरा कि ऐसा कोई ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं की जाएगी मेरे बारे में
कि आप मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल दे, मुझे अपनी बात कहने का, सुनने का, बदलाव करने का मौका मिलना चाहिए। और आज भारत सरकार और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो फाइट हो रही है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। संबित पात्रा जी के ट्वीट को उन्होंने जो है मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, तो उन्होंने कहा कि आपको ये प्रोफाइलिंग करने का ऑटोमेटिक तरीके से किसने राइट दिया? आप कोई कोर्ट तो है नहीं, इस पर तो पुलिस जांच हो रही है। पुलिस जांच के बाद ये मामला कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये मैनिपुलेशन है, सही है, गलत है। ट्विटर को ये राइट थोड़ी ना मिला हुआ है। तो ये आपको, अगर ऐसा कानून हमारे यहाँ भी होता तो अब तक संबित पात्रा जी 5-10 करोड़ का जो है हरजाना खर्चाना का मुकदमा लेके हाई कोर्ट दिल्ली में चले जाते, लेकिन क्योंकि अभी कानून है नहीं तो इसलिए थोड़ा सा और तरीके से बात करी जा रही है। पर यूरोप में GDPR में यह कानून है। अब हम थोड़ी सी बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि कानून है, रूल्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। सिर्फ ये जानना कि हाँ ऐसी रिक्वायरमेंट है, बट वो रिक्वायरमेंट को हमें कैसे करना है, अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स लेने हैं। टेक्निकल मेजर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपको लगाना है, फायरवॉल लगाना है, डीमिलिटराइज्ड जोन लगाना है। आप मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि आपके बिजनेस और आपके फर्म की जो साइज है, इन दोनों को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी सी फर्म है और आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, बड़े बड़े टूल्स लगा लिए तो भी काम नहीं करेंगे। आपका बिजनेस इस तरह का है कि आप कबाड़ बेचते हैं, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर वो लगा लिया जो बैंक में लगना चाहिए, तो भी शायद आपके काम नहीं आएगा। तो रेलेवेंट होना चाहिए आपके साइज और बिजनेस के टाइप के हिसाब से, खर्चा भी उसी हिसाब से होना चाहिए। मेंटेनेंस, उसमें मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है, क्या वो टेक्निकल मैन पावर आपको अवेलेबल होगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, केवल ऑफिस में काम करते हैं तो अलग रिक्वायरमेंट है। आप अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको अटैक ज्यादा आते हैं, हेल्थ का डेटा है अटैक ज्यादा आते हैं, ब्रोकर है अटैक ज्यादा आते हैं, तो उस तरह से आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। टेक्निकल मेजर्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स में ट्रेनिंग कराइए, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी बनाइए, और पर्सनल डेटा का जितना जिस एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट है उसका एक्सेस उतना ही दीजिए। अगर हर व्यक्ति को सारा डेटा का एक्सेस है तो चाहे तो वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझ रहा इसलिए, या वो उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके ले जा रहा है, तो पेन ड्राइव के एक्सेस रोकने के भी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आप कानून का पालन करने के लायक बन पाएंगे। सिर्फ सोचने से, सिर्फ मन में परेशान होने से आप नहीं कर सकते। अगर डेटा ब्रीच हो जाता है 72 घंटे के अंदर आपको अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है, और जिनका डेटा ब्रीच हुआ है उनको भी इन्फॉर्म करना, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। एक और नई कॉन्सेप्ट आई है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, हर कदम पे आपको डेटा प्रोटेक्शन बाय डिजाइन एंड डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे हमने बात किया था कि भैया देसी घी की दुकान है, ऐसे मतलब नहीं है। क्या आप वाकई में हर जगह देसी घी का प्रयोग करते हैं, ये आपको अपने प्रोसेस के, अब आपके कारीगर से जाके पूछा भैया देसी घी की मिठाई बनाते हो, देसी घी ये क्या चीज होती है, हमने कभी सुना ही नहीं, हम तो सिर्फ डालडा और फॉर्चून जानते हैं। तो इसका मतलब जो लोग आपके यहाँ मिठाई बना रहे हैं उन्होंने कभी देसी घी देखा नहीं, सुना नहीं, यूज नहीं करते, तो ऑब्वियस है कि वो जो मिठाई है वो देसी घी की नहीं हो सकती। तो जो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर है, जो आपके यहाँ प्रोसेस है, वो भाई डिजाइन इन सारे प्रिंसिपल्स को और जो यूजर के राइट्स हैं उनको इम्बाइब करके ही चलेगा। ऊपरी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे ये काम होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप डेटा प्रोसेस किन किन सिनेरियो में कर सकते हैं। अगर आपको वो लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसका डेटा आपके पास है, दे गया, वॉलंटरी दे गया, फिर भी आप उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। ये डेटा सब्जेक्ट गिव्स यू स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस कंसेंट। सबसे पहले तो डेटा सब्जेक्ट से कंसेंट लेनी पड़ेगी। किस चीज की कंसेंट? कि वो आपको डेटा दे रहा है और आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो कंसेंट बड़ी स्पेसिफिक होगी कि किस काम के लिए दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर पर्सनल डेटा दे रहा है, सैलरी डिटेल, तो क्या रिटर्न फाइल करनी है, क्या टीडीएस भी फाइल करना है,
क्या उसको म्यूचुअल फंड के बारे में बताना है, क्या उसे इंश्योरेंस के बारे में बताना है, क्या समय समय पे सरकार की नई नीतियों के बारे में बताना है, नहीं बताना है, सब आपको उससे समझना है। डिफॉल्ट कुछ नहीं है यहाँ पर। Processing is necessary to execute or to prepare to enter into a contract to which the data subject is a party. Contract oral भी हो सकता है, contract written भी हो सकता है। तो आपको उससे मुंह जबानी या लिखित तौर पे कंसेंट लेनी है कि भैया हम ये सब चीजें करेंगे, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अब आप और किस लिए डेटा ले सकते हो, यूज कर सकते हो, किसी की जान बचानी है तो कंसेंट पहले नहीं लेनी है। अब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो बेचारा कंसेंट कहां से देगा, वो तो बेहोश है, हो सकता है तो उसके साथ में भी ना आया हो, उसको पुलिस वाले लेकर आए हो या कोई सड़क से उठा के ले आया हो, तब आप कर सकते हैं उसका। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट में है, जैसे कोई छोटे बच्चे के बारे में हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में होता है जो कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। कंसेंट के बारे में इन्होंने काफी डिटेल में बताया है, और कंसेंट जो है अब इतनी आसान नहीं रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो जब आप अपनी पॉलिसी बनाएं तो हमसे चर्चा करें, हम आपको बताएंगे किस तरह से कंसेंट लेनी है। डीपीओ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीपीओ क्या काम करेगा और डीपीओ क्यों अपॉइंट करना है। ये पब्लिक अथॉरिटी है, आपके पास लार्ज स्केल का डेटा है, मेडिकल डेटा है, और आप डीपीओ बना सकते हैं चाहे लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जीडीपीआर के प्रोविजंस को लेके हमने आज चर्चा करी है। अब हम भारत का जो कानून है, भारत में क्या अभी वर्तमान व्यवस्था है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीपीआर की ऑलमोस्ट कॉपी जैसे हमारा भी पीडीपी एक्ट बनने वाला है, बिल पार्लियामेंट के सामने है, सेलेक्ट कमेटी के पास काफी लंबे समय से मौजूद है, करीब करीब 2 साल होने को आ गए हैं, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली पार्लियामेंट में उसके पास जल्दी ही करवा दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि भाई इंडियन आईटी एक्ट क्या कहता है, इंडिया में कंपनसेशन की क्या पोजीशन है। ये जो जनरल रूल है, चाहे वो जीडीपीआर है, चाहे वो इंडियन लॉ है या नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल सेम है। अब आप बोलेंगे साहब वी एज ए कंट्री आर गवर्न्ड बाय लॉ, तो कोई चीज जिसके ऊपर लॉ नहीं है तो उसको हम यहाँ क्यों फॉलो करें, हम तो नहीं करते। लॉट ऑफ पीपल टॉक लाइक दिस कि जी हम तो नहीं करते, आप लॉ दिखाओ कहाँ है। Please remember, understand and appreciate that Honorable Supreme Court in a decision in a case involving Justice Pottaswamy, which is also known as Aadhaar verdict, declared privacy as a fundamental right. And once something is already there in the Constitution as a fundamental right, or has been declared later on as a fundamental right, it becomes enforceable by a writ petition. Everybody has to accept that if a fundamental right is there in the Constitution of India, that becomes available to each and every person, and many of these rights are available even to residents and visitors who are not even citizens of this country. And right of privacy under Article 21
of the Constitution of India has been declared as a fundamental right. एक बार वो अच्छी फंडामेंटल राइट बन गई है तो वो एप्लीकेबल है, मुझे, आपको, सभी को वो मिल भी गई है और दूसरों के लिए हमें अब उसको फॉलो भी करना है। सेक्शन 43A आईटी एक्ट, compensation for failure to protect data where a body corporate possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owns, controls or operates, वही बात आ गई, आप डेटा कंट्रोलर हो या आप डेटा प्रोसेसर हो, यानी अगर आप ओनर हो तो आप डेटा कंट्रोलर हो और आप उसे ऑपरेट करते हो तो आप कंट्रोलर या प्रोसेसर कुछ भी हो सकते हैं। is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such a body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected. अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जिसके पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और आपने अगर उसको सही तरह से अपने आप मेंटेन नहीं किया और वो डेटा चोरी हो गया, दूसरे लोग उसको यूज कर रहे हैं गलत तरीके से, 5 करोड़ तक का कंपनसेशन और फाइन आपको पड़ जाएगा। इसके नियम कहां पर बने हुए हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स। क्या कहते हैं ये? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? अभी तक ज्यादातर लोग सोच रहे थे हम तो सीए फर्म चलाते हैं भाई, हमारा क्या मतलब है, ये तो कॉर्पोरेट के लिए है। तो आपकी ये खुशी क्षणिक थी और अब इस खुशी को आप दूर कर सकते हैं। नियम क्या कहते हैं, रूल क्या कहता है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस, और ये नियम है, गजेटेड नोटिफिकेशन है, ये मेरी इच्छा या मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ना ये जीडीपीआर का, ये भारत का कानून है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस एनी कंपनी एंड इंक्लूड्स अ फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स engaged in commercial और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। बड़ा क्लियर कर दिया। आप बोलोगे जी हम तो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन्होंने लिख दिया प्रोफेशनल भी इसमें शामिल है। कॉमर्शियल में तो सभी ऐसी कंपनियां जो फॉर प्रॉफिट चल रही हैं। एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में कंपनी भी आएगी, एलएलपी भी आएगी, जितने तरह के भी फॉर्मेट हो सकते हैं सभी आएंगे। अब उन्होंने कहा भाई रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आपको ये सारा इंतजाम करना है कि किसी भी प्रकार से समस्या ना हो, डेटा का ब्रीच हो। सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी इन्होंने बता दिया, साइबर इंसिडेंट्स इन्होंने बता दी, दुनिया भर के चीजें इन्होंने साइबर इंसिडेंट्स में लिख दी। मींस एनी रियल और सस्पेक्टेड। अब देखिए, एक तो वाकई में डेटा चोरी हो गया, हैकिंग हो गया, अगर मैंने सिर्फ यही आरोप लगा लिया कि मुझे लगता है कि जी हो गया, यानी देसी घी की दुकान में एक तो आदमी बीमार पड़ गया, उसका गला खराब हो गया घासलेट खा के, मुझे वहां जाके सिर्फ खुशबू आई विलायती घी की और देसी घी की नहीं है। मैंने कहा भाई वो तो दुकान में देसी घी का इस्तेमाल नहीं होता, अभी मिठाई खरीदी भी नहीं है, अभी गला खराब भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ सूंघा वहां जाके, खरीदने की इच्छा दिखाई और आके बोल दिया पुलिस थाने में कि नहीं जी वो तो नकली लगाते हैं जी, देसी घी है। means any real or suspected adverse event in relation to cyber security। तो मतलब कानून सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि जी जब आपके यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तब कानून लागू होगा। अगर किसी को ये शक भी पड़ जाता है रीजनेबली कि भाई ये लोग डेटा प्रोटेक्शन नहीं करते, मेरा डेटा दूसरों को यूं ही बांटते फिरते हैं, अब आप बोलोगे जी ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन बड़ा लोग पूछते हैं, क्योंकि ये आमने सामने की कॉन्फ्रेंस नहीं है, वरना मुझे श्योर 10-5 लोगों ने अब तक खड़े होके कि आगे बोलना बंद करो, पहले ये बताओ ये पता कैसे चलेगा। हम तो किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि हमारे यहाँ से डेटा चोरी भी हो गया। तो मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ, दूसरे का तो हम भी नहीं बता सकते ना, क्योंकि हम खुद भी डेटा प्रोसेसर है, किसी का कैसे बताएं, लेकिन अपनी बात तो कह ही सकते हैं। तो साहब मुझे एक बड़ी सुंदर सी ईमेल आई कि हमने आपका जो है वो डिपॉजिटरी में अकाउंट खोल दिया है और ये पूरी तरह से फ्री है। तो हमने लिखा कि भाई हमने तो अपने अप्लाई नहीं किया, वी हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी डिपॉजिटरी अकाउंट एंड डिपॉजिटरी अकाउंट कैन नॉट बी ओपन्ड विदाउट केवाईसी डॉक्यूमेंट। जब तक आप पैन कार्ड वगैरह नहीं देंगे तो डिपॉजिटरी में अकाउंट तो खुल ही नहीं सकता। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया
Thank you very much, sir. And our friends in the insurance industry, our partners in the insurance industry has shared this with us. क्या क्या लिख के दिया उन्होंने कि साहब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने हमें वो केवाईसी डेटा आपका दिया था। मैंने कहा भैया हाँ 2-4 महीने पहले किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस तो हमने अप्लाई किया था और उनको ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी सैलरी है, इनकम की डिटेल, पैन कार्ड, बैंकिंग डिटेल, काफी चीजें को मांगते हैं, हाइट, वेट, कोई आपको बीमारी तो नहीं हुई, ये नहीं फलाना ढिकाना, तो सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को हमने स्पेसिफिक डेटा पर्पस के लिए दिया था कि आप हमारा इंश्योरेंस करिए। मान लीजिए हमने कहा कि साहब मेरा आप 10 लाख का इंश्योरेंस करिए, तो वो हमारा असेसमेंट कर रहे हैं कि भाई 10 लाख का दे सकते हैं, दे सकते हैं, और कितना प्रीमियम होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाकी डिपॉजिटरी का अकाउंट भी खुलवा दे मेरा, बैंक अकाउंट भी खुलवा दे मेरा, वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाई आ जाओ, अब तो मर्सिडीज खरीदने का अच्छा मौका आ गया, 5 करोड़ मिलेंगे। हमने इंश्योरेंस कंपनी वाले के ऊपर दावा ठोक दिया। बोले जी क्या, क्यों आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि जी हमने आपका डेटा लीक किया। मैंने कहा कि एनी रियल और सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट हो गई। सस्पेक्ट तो है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जी इंश्योरेंस कंपनी से लिया, और हमने तो पिछले कई सालों से एकमात्र आप ही इंश्योरेंस कंपनी हो जिसने अपना डेटा दिया, तो भाई इंप्लीकेशन आप ही हो। अब आप सिद्ध करो कि आप नहीं हो, हमारे हिसाब से तो आप ही हो। 5 करोड़ ले आओ, सेटल कर लेते हैं। तो सर सिविल मैटर है, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। डैमेज देना है आपको, 5 करोड़ रुपए तक हमें मिलने हैं, आप पहले ले आओ, हम अपनी शिकायत वापस ले लेंगे, क्योंकि अदालत या कानून भी तो हमें कंपनसेशन ही देने वाला है। और आपको ये बोलेगा कि आइंदा ऐसा मत करना, आप माफी मांगोगे गलती की, और आइंदा ऐसा ना करने का वचन दोगे, क्योंकि सिविल कानून है और डैमेज हमें मिल जाएगा, दैट्स ऑल, फाइन। पहले भी कर सकते हैं, विच इज लीगल। सिविल मैटर में आप कभी भी घर पे बैठ के पार्टीज में आपस में सलाह मशविरा करके समझौता करके कोर्ट में जाके बता सकते हैं कि साहब हमारा समझौता हो गया है। कोर्ट में वो अपने समझौते के मामले को पेश कर सकते हैं, शर्तों को बता सकते हैं, और अगर उसमें कोई इलीगल मामला नहीं है तो कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो हम करने वाले थे वो आप लोगों ने कर लिया, हम अपने ऑर्डर में लिख देते हैं कि समझौते के बाद इन लोगों ने अपने मामलों को वापस ले लिया, थैंक यू वेरी मच, लेट्स बी हैप्पी। तो साइबर इंसिडेंट्स मीन रियल और सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट in relation to cyber security that violates an explicitly or implicitly। बोलेंगे साहब हमारी तो पॉलिसी यही थी कि जी हम तो सबको बांटते हैं अपना डेटा। मैंने कहा भैया कानून कहता है, इंप्लाइड पॉलिसी कानून की क्या है कि आपको डेटा दिया गया था, 43A में क्या लिखा था कि आप इसको शेयर नहीं करेंगे, आप इसको देंगे नहीं किसी को, resulting in unauthorized access, denial of service or disruption, unauthorized use of a computer resource for processing or storage of information, or changes to data information without authorization। आपको पहले मेरे से लिखित में बताना था और बताकर पूछना था कि भैया हम डिपॉजिटरी वाले को दे दें, हम फलाने बैंक वाले को दे दें, इंश्योरेंस और दूसरी कंपनियों को बांट दें। अगर हम कहते हैं हाँ बांटो, आने दो उनका फोन, हमें अच्छा लगता है, मैडम फोन करेंगी, कुछ देर टाइम पास हो जाएगा, तब तो ठीक है, अदरवाइज नो। उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है, जो कि हम पहले भी अभी GDPR में भी देख चुके हैं, यहां भी कानून में इसकी व्याख्या की है, इसके बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल व्हाट वी आर नाउ कमिंग टू दिस इज दैट देयर इज अ लॉ रिगार्डिंग data protection and privacy in Europe, which is covering all the Europeans and people who are living in Europe, residents, whether they are citizens of Europe or not, and all data controllers and processors. So if I am processing European data, I will have to be GDPR compliance। हमसे लोग मांगते हैं, लीगल ओपिनियन भी लेते हैं, कंप्लायंस की बात करते हैं, उनका कंप्लायंस करवाते हैं, कंपनी इंडिया में ही काम कर रही है, बट उनके पास अगर एक भी यूरोपियन का डेटा है, सिंगल यूरोपियन, आप बोलोगे जी ज्यादा नहीं है, बस 10-5 का रखते हैं, बहुत है, एक आदमी का भी अगर आप रख रहे हैं,
आपको GDPR कंप्लाइंट होना पड़ेगा, और खाली दुकान के बाहर लिखना नहीं होगा कि देसी घी का माल बनाते हैं, देसी घी की मिठाई बनती है। इन लेटर एंड स्पिरिट, टेक्निकली ऑर्गेनाइजेशनली, जैसा कि बताया गया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलर कानून इंडिया में भी है। दूसरा पहलू हमने देखा कि हमारा डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी रेपुटेशन, हमारी वैल्यूएशन, हर चीज डेटा पर डिपेंडेंट है, हमारा पूरा बिजनेस। अगर आज मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को शेयर हो जाए और क्लाइंट्स की ये बदल रही हो, कितना बड़ा क्लाइंट है, क्या है, तो आप बोलेंगे भैया फीस उसको कितनी देते हो, एक्स अमाउंट, एक्स माइनस वाई, चलो भाई मैं आपका काम करूँ। तो ये इंफॉर्मेशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट we maintain our information, our privacy, under no circumstances हम इस डेटा को किसी और को दें, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी भी है, और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, उस पर साइबर से, डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित वाद विवाद और संवाद होता रहता है, और उसकी चैनल्स की जानकारी और चैनल की वीडियो इस पर अवेलेबल रहते हैं। आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे आपकी जानकारी मेरे से बनी रहेगी। अगर आप खुद साइबर में इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं तो ये किताब अमेजन से ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ लिखी है। दुनिया की पहली ऐसी किताब है जिसमें पूरा हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ लिखा हुआ है। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 38% का। राजेश जी का प्रोग्राम था तो हमने इसको डिस्काउंट कर दिया। हमने कहा कि आप भी कहेंगे कि साहब हमारे जो है मित्रों के लिए, प्रोफेशनल फ्रेंड्स के लिए आपके पास क्या है, हम तो फ्री सेमिनार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो हमने 30% डिस्काउंट, 38%, 750 रुपए इसको कर दिया है। तो सभी लोग इसको अमेजन से खरीदें। अमेजन पे डिस्काउंट पर है, फ्लिपकार्ट पे शायद डिस्काउंट नहीं है। एनीवे, तो मेरे ख्याल से आज हमने काफी समय आप लोगों का ले लिया है और काफी चर्चा हो गई है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर राजेश जी और ऑर्गेनाइजर्स की अलाउ हो कि अगर कोई प्रश्न उत्तर है, कोई लोग प्रश्न करना चाहें, तो वो राजेश जी के माध्यम से चैट बॉक्स में लिख के या जिस तरह से भी, क्योंकि कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे प्रश्न उत्तरों को, क्वेश्चन आंसर्स को, सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस प्लीज। सर 5-7 मिनट जरा वो डीएससी पे और सब प्रकाश डाल दो ना। डीएससी पे और प्रकाश डाल देते हैं। हाँ, ये इसको हम इस प्रश्न की तरह ले रहे हैं। तो पहला राजेश जी का प्रश्न आया कि डीएससी क्या होता है और क्यों होता है, क्या जरूरत है इसकी। तो साहब, when we started e-governance in this country, especially when government started giving facility of electronic documentation, MCA, income tax, GST का भी बाद में आया, उसके पहले ट्रेड टैक्स था, and government tried to reach out to people in the reason was transparency, corruption, speed, and reducing procedural requirements. So they went towards the e-governance. Similarly, e-commerce आया because it was found more cheap, more easy for people to transact online. और अभी पैंडेमिक में सारे कॉन्ट्रैक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल ना तो लोग आ रहे हैं, ना मुद्दा लगाने वाला कोई मिल रहा है। आज आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो कि सर आके मिल लीजिए, मैं आपसे आके मिल लेता हूँ, मुझे अपनी रिटर्न भरवानी है, और 50,000 रुपए फीस दूंगा, बोलेगा सर ऑनलाइन भेज दो। आप 50,000 की जगह 45,000 दे देना, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। वो कहता है सर मैं आऊंगा, मिठाई का डब्बा भी लाऊंगा। सर मिठाई का डब्बा आप रहने दो, फिर बाद में देख लेंगे। क्यों? इस समय कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, पीपल वांट टू डू बिजनेस, वांट टू मीट, बट ई मीटिंग ही ठीक है। अभी कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। जरूरत हो तो भी, काम हो तो भी, बिजनेस। मेरे पास जी टीवी का फोन आया, सर आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा जी बोलो। कहता नहीं सर मिलना है। मैंने कहा नहीं मैडम सॉरी, आप क्वेश्चन लिख के भेज दो, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। आजकल तो ऐसे इंटरव्यू देता हूँ, या आप बात कर लो, जूम पर आ जाओ, स्काइप पर आ जाओ। और आजकल राज्यसभा टीवी पे बैठते हैं, स्काइप पर बैठते हैं, ना वो स्टूडियो में बुलाते हैं ना हम जाते हैं।
बिकॉज ऑफ द रिस्क। तो जब इलेक्ट्रॉनिक में सारा चला जा रहा है तो ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो आईटी एक्ट में प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर may authenticate an electronic record by affixing his digital signature। तो डिजिटल सिग्नेचर की लीगलिटी आईटी एक्ट से आई है एंड इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू फिजिकल सिग्नेचर, बट द डिजिटल सिग्नेचर हैज टू बी एज प्रोवाइडेड इन द लॉ सेक्शन 3 एज वेल एज शेड्यूल 2 ऑफ द आईटी एक्ट। बहुत सारे लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर में फर्जी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर को लीगल बता रहे हैं, वो सारे इलीगल है, गलत है। उसमें से कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स authentication of any electronic record by a subscriber by means of electronic technique specified in the second schedule and includes digital signature। तो या तो वो डिजिटल सिग्नेचर है एज पर द आईटी एक्ट, या कोई और तरकीब है जो सेकंड शेड्यूल में है। और सेकंड शेड्यूल में सिर्फ ई केवाईसी है जो कि यूआईडीआई वाले चलाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी जितने भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डॉक्यूमेंट बनाने के सॉफ्टवेयर घूम रहे हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सिग्नेचर इमेज यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, सब बेकार है, इलीगल है, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की लीगल रिकॉग्निशन है लॉ के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की भी वैलिडिटी एज पर लॉ है। अब एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है राजेश जी मुझसे सुनना चाह रहे हैं, और जो अभी तक मेरी एक अच्छी इमेज शायद कुछ लोगों के बीच में बनी है वो थोड़ी सी डेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मेरा मैंडेट है तो मुझे बताना भी पड़ता है। सेक्शन 66C पनिशमेंट, whoever fraudulently or dishonestly make use of the electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स का डिजिटल सिग्नेचर उसके डॉक्यूमेंट्स पर लगा रहे हैं और कल को वो ये कहता है कि जी मैंने तो डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए इनको ऑथराइज नहीं किया, तो 3 साल की सजा बामुशक्कत और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, एफआईआर लिखने के बाद सीधे अरेस्ट हो गए। तो जब आप लोग डिजिटल सिग्नेचर किसी दूसरे का यूज करें तो ध्यान रखें, उसको डॉक्यूमेंट भेज दें और उसको बोल दें कि भैया आप सिग्नेचर लगा के मुझे भेज दो। तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जो लॉ है क्रिमिनल साइड या उसकी ऑथेंटिकेशन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अच्छा लॉ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसकी ऑथेंटिकेशन अभी है एक्ट में। कभी भी आपको इसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन करनी है आप मुझे व्हाट्सएप करें, फोन करें और मेरे से बात कर लें। आई होप आई हैव आंसर्ड राजेश जी योर क्वेश्चन। यस सर, यस सर। एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन ये है सर, जब आपने ये बताया कि इन केस ऑफ डाटा थेफ्ट हमें 72 आवर्स में इन्फॉर्म करना है पुलिस को और एज वेल एज क्लाइंटों को जिनका डाटा चोरी चला गया, बट क्वेश्चन ये उठता है कि सब डाटा ही जब चोरी चला गया तो किसको कैसे कांटेक्ट करेंगे, हम क्लाइंट को कैसे कांटेक्ट बढ़िया करेंगे? आपने सवाल किया। डेटा चोरी के केस में डेटा की कॉपी चोरी होती है, ये फिजिकल सोना चांदी नहीं है कि भाई आके तो सोना उठा के ले गया, अब मैं इसको क्या, वो आपसे जब डेटा चोरी करेगा कोई तो डेटा की कॉपी बनाएगा। आपका डेटा तो आपके पास है ही, आपके क्लाइंट्स का डेटा आपके पास है, ईमेल है, फोन नंबर है, वगैरह वगैरह, तो वो आपसे। और लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, व्हेन यू वांट टू इन्फॉर्म, आप किसी एक्सपर्ट से पहले सलाह ले लीजिए कि क्या हमें वाकई में, ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पर आपको एक्चुअली इन्फॉर्म नहीं भी करना होता है। ये तो एक प्लेन एंड सिंपल थिंग है, एक बार आप इन्फॉर्म करेंगे तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो क्या ये वाकई इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, लीगली कितनी मेरी लायबिलिटी बनती है, तो इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से एक बार सलाह ले लें, लीगल ओपिनियन ले लें, और फिर ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। कॉपी तो आपके पास है ही है, नहीं तो फिर आप अखबार में निकाल दीजिए
इंटरनेट पे निकाल दीजिए कि साहब हमारा सब कुछ चोरी हो गया और कुछ भी नहीं बचा। बट जिन लोगों ने भी हमें डेटा दिया था वो अपना चोरी मान के चले, उसकी फिर ये तरकीब है, पब्लिक नोटिस दे दीजिए। अच्छा सर, कोई क्वेश्चन आए हैं, 4-5 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके रीड कर देता हूँ। जी आशीष बंसल जी पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्रोवाइड एनी प्रैक्टिकल एंड वर्केबल सॉल्यूशन फॉर यूजर्स ऑफ डीएससी ऑफ द क्लाइंट? मैंने तो बता दिया, वर्केबल और यूजेबल सॉल्यूशन ये डॉक्यूमेंट उसका भेज दीजिए और उसको बोलिए कि भैया इसमें आप डीएससी लगा के वापस कर दो। अब अगर ये वर्केबल नहीं है तो फिर तो आपको मुझे फीस देनी पड़ेगी, फिर मैं कोई आपको सोल्यूशन ऐसा बताऊंगा कि जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि पब्लिकली मैं तो यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिए। अरे भाई जब हमारे पास डीएससी की फैसिलिटी नहीं थी तो भी हम लड़के को भेजते थे ऑफिस में, या उनका लड़का आता था आपके ऑफिस में साइन कराने के लिए, करने के लिए, या वो खुद आते थे। तो डीएससी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब ये एक बात है कि आपको एक फैसिलिटी मिल गई है तो इसका मिसयूज करने वाली बात है, तो हमें उसको मिसयूज नहीं करना है, हमें उसका जेन्युइन यूज करना है। आज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने की वजह से चीजें फास्ट हो रही हैं, तो अब तो वैसे भी इतना टाइम बच रहा है। अब आपने डीएससी भी अपने कमरे में 200 300 400 500 रखे हुए हैं और सबका पासवर्ड भी मैं बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 भी होता है सर साथ में। अच्छा 6 हो गया। मिनिमम 6 कैरेक्टर होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सबका पासवर्ड है जी। अनुज जी हम एक काम कर सकते हैं इसमें, अनुज जी हाँ जी बोलो सर। बोलो। ये जैसे आप डीएससी लगाते हैं तो हम उससे पहले उससे एक मेल मंगवा लेते हैं क्लाइंट से, ये वाले मेरे पेपर है, हम आपको ऑथराइज करते हैं डीएससी के लिए, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी उससे कम होती नहीं होती? सर ऐसा है कि ये तो आपका डिसीजन है, आप कर लीजिए। मैं एडवोकेट हूँ, जब केस फंस जाएगा तो आप आइए, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ लोगों का। अच्छा ये ठीक, ये नहीं है, मतलब ये तरीका नहीं है कोई भी हम मेल ऐसा ये मंगवा मना कैसे कर सकता हूँ? आके मुझे अपना भी तो ख्याल रखना है, एडवोकेट फ्रेटर्निटी का भी तो ख्याल रखना है, मुझे भी रखना है। मेरे काफी एडवोकेट मित्र भी इसमें जुड़े हुए हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी एडवोकेट हैं, सबका ख्याल रखना है। मैंने तो अपनी बात कह दी। नहीं अरोरा जी, ऐसे ऐसे इट इज नॉट अलाउड सर, अरोरा जी इट इज नॉट अलाउड सर। ओके। अच्छा सर, नया एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर रविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं, इन एयरटेल ऐप व्हेन आई डाउनलोडेड while starting it shows my bank account, I want to link with UPI, I don't know how Airtel got it, whether it is data breach by Airtel? आप एयरटेल को एक नोटिस दीजिए कि भैया ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इन माय ओपिनियन, मैंने आपको लॉ सारा बता ही दिया, आप अपने लेटर हेड पे एक उसका नोटिस दीजिए, दे आर बाउंड टू रिप्लाई यू कि भाई ये कैसे हो रहा है। यू डेफिनेटली हैज ए राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड थ्रू ए नोटिस। खुद दीजिए, किसी लॉयर के थ्रू नोटिस भेजिए कि भाई अगर आपने कभी भी शेयर नहीं किया किसी भी तरह से, प्लीज फिगर आउट, you can give them notice. Yes, it is a breach. जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, राजेश मित्तल जी इज आस्किंग, कैन बी यूज्ड, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। If हाँ। someone uses other person's documents to create DSC to file returns or documents of a fake entity generated in other person's name, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी से ही किसी अधिकारी ने पूछा है। If someone uses other person's documents to create DSCs to file returns or documents of a fake entity generated in other person's name and data, तब क्या होगा? क्योंकि it is a clear case of what we call as 420 and 473. फेक डॉक्यूमेंट्स, तो फेक डॉक्यूमेंट्स के केस में तो 10 साल की सजा है। फेक डॉक्यूमेंट्स के केस में 10 साल की सजा है। तो यहाँ पे डीएससी चूंकि फेक डॉक्यूमेंट से बनाया गया है और जीएसटी रिटर्न वगैरह या कहीं भी कोई सरकारी महकमे में अगर फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे किसी ने डीएससी वगैरह बना के कोई रिटर्न फाइल कर दी है, तो वो तो फिर इस 3 साल वाली सजा से आगे निकल के अब 10 साल वाली सजा के ब्रैकेट में आ गए। तो भाई इसमें तो केस डालने की जरूरत ही नहीं है, उसकी तो बेल भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई मामला किसी के सामने आता है, चाहे सरकार में या कहीं पर भी, तो फिर तो बंदा गया, उसको तो बेल मिलनी नहीं है। एक डॉक्यूमेंट का मैटर है। सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ, 3 क्वेश्चन है।
Can we use DSC on check in present applicable law? Can we use DSC on legal documents such as service agreement, affidavit, lease agreement? बिल्कुल, yes. 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 Next question. सचिन सिंघल जी पूछ रहे हैं, कैन वी कीप डिजिटल जहां तक सिग्नेचर? चेक का सवाल है, चेक में डिपेंड करेगा कि जो काउंटर पार्टी है, जैसे कोई बैंक है, जब तक वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है चेक बनाना। तो जब तक काउंटर पार्टी आपके उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो मुश्किल है, बट लीगली यस अलाउड है। Next question. Sachin ji asking, can we keep digital signature of our client with his declaration for keeping the same for signing his documents? क्या तो दिया सर? अभी तो उसी सवाल को ऐसे करके बता रहे हैं, मेरा नाम उधर से पकड़ रहे हैं। सचिन जी आप जो चाहे कर लो सर, हम तो आपको रोक नहीं सकते ना। But it is not allowed. भाई Next. लॉ तो सेम ही है सर। अब हम उसे फॉलो करें ना करें वो तो हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है। जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज वर्ड SD in balance sheet and audit report in place of signature while uploading to it on income tax site or other government site. Is it valid? देखिए SD का कोई खास मतलब मेरे लिए नहीं है। When you do a signature, which means you have read that statement document, you are agreeing with the contents, that is what the meaning of the signature is. Now what your signature can be, now a Rajesh Agarwal can be written in this manner or can be written in this manner or whatever manner, that is immaterial. Until and unless your intent is to sign, agree and upload, it is valid. Now whether the department is going to accept it or not, that is absolutely at the discretion of the department. That what do they mean by signature? Whether they allow SD as a signature or they want you to write your name or whatever, it is up to them. In any case, if it is proved that it has been uploaded with your consent or with your desire, it is signed by you, so you remain liable and for that. Okay, sir. Next question. Some government officers sending notices oblique summons where notices are in Word format and signature images pasted in Word file or in email. Whether such notice summons have validity in court of law? No, signature image is not a signature. If it is a Word document, then signature image is not a signature. But if it is first created on the paper and then scanned and sent in a PDF, for example, then kind of okay. Although it should ideally be digitally signed. But since a physical copy can always be found out in the office and under RTI, you can go and see that. So a physical document is actually created and a copy has been served on you. In any case, a lot of documents come to you as a photocopy, while original is kept in the office, and notices, even if it is not in original, a copy of a notice is served on you, you consider it as a notice, because notice is only an intimation against which you need to do some action. So it can be deemed appropriate provided the original is in the office and it is a scanned copy. But if it is only a Word document with a signature image, that is not the correct way of doing it. Next question. Is it legal to pay the amount for ransomware attached, especially when the ransom is asked for in US dollar or Bitcoin? Or is it advisable to pay the amount if decryption tool is not available? Sir, it is always desirable to do sufficient cyber security
आप मुझसे मिलिए, मैं आपका जो भी ऑफिस है साइबर सिक्योर कर दूंगा। रैंसमवेयर क्यों देते हैं? रैंसमवेयर देना, फिरौती देना कभी भी लीगल नहीं हो सकता, किसी भी करेंसी में उसको देना लीगल नहीं हो सकता। और ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर रैंसमवेयर भी दे देंगे तो भी वो आपको एन्क्रिप्शन की दे देगा। क्रिमिनल इज क्रिमिनल। इसलिए किसी भी तरह के रैंसमवेयर को देना ना तो लीगल है और ना एडवाइजेबल है किसी के लिए भी। तो आप, इसीलिए आज का सेशन राजेश जी ने रखा था कि भाई हम सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी करनी है, ताकि साइबर सिक्योरिटी करके हम अपने आप के ऊपर जो अटैक आने वाला है, आ सकता है, उससे अपने आप को रोकें, लीगल लायबिलिटी से भी बचें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी आर टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर डाटा ब्रीच? इंडिया में CERT, CERT.in, CERT को आपको जो है इन्फॉर्म करना है। CERT, जी। आई थिंक नाउ तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं। 6-5। Anyway, sir, thank you very much for your detailed deliberation on the subject and taking all the question answer. I request Hemant Pavaji kindly present a formal vote of thanks. Over to Pava, sir. Thank you, Rajesh ji. I thank Anuj Agarwal ji for enlightening us on this IT Act in such a simple way that we have come to know what is data and what is data breach. How this our chartered accountant fraternity are prone to this data theft, which normally is not being taken care of by many of us. Normally we assume only this quick heal or upper sky is there, we are safe. But as per your explanation of the act in a very simple language, we have come to know that it is very much more, and it is too much required for getting us cyberly secured, so that any liability does not arise to us. Further, DSC, which is generally being kept in the offices of all CAs, is a huge liability, I believe now. Thank you, sir. Sir, we should also be thankful if you provide us any document like what we should get from the employees, so that they do not copy any data without authorization. Normally, it is not allowed to all the employees, even any employee, to take away the data. But sometimes they copy it, and we have to give like work from home. They copy it on their computer or like that. Shall we obtain some underwriting or something like that we should have from the employee? Sorry, sir, can you repeat? Sir, like in our offices, like we are working from work from home. Sometimes employee copy that data from main server to their laptop for doing the work. Shall we obtain any document from them before allowing this thing, or because it is basically a distribution of the data? I think you can take two measures in this. One measure is you ask them to sign an undertaking that they will not be doing all this and some consequences of penalty. And the second option, which is a better option, is that while you are giving the official laptops to all these people, please implement an endpoint security solution which blocks USB and all other kind of transfers and tracks it. So in case somebody is copying information through internet, through email, USB is blocked and all that, or even through USB, you at least come to know, and then you can guide him or catch hold of him. Otherwise, there is no other way. One is undertaking, another is endpoint security. For example, ThreadSpike is one good software which, if you implement in your employees' computers, so then that will have a complete control and information given to you in real time through your control panel that what is happening. और आजकल कुछ महंगा नहीं है, लैपटॉप 20,000 में मिलता है, सॉफ्टवेयर 5,000 में मिलता है, 6,000 में मिलता है, डेटा तो बहुत वैल्यूएबल है। ये आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा, कानूनी रिक्वायरमेंट भी है, और आपके अपने बिजनेस, अपने फर्म की रेपुटेशन और डेटा सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
Thank you, sir. Thank you सर so much. एक लास्ट क्वेश्चन आया था कि यदि किसी सीए के यहाँ कोई रेड हो जाए इनकम टैक्स की या कोई भी, और वहाँ काफी मात्रा में डिजिटल सिग्नेचर मिल जाए, तो क्या सर उसका पेनल्टी क्या है, प्रोविजन और क्या है सर उसमें सब कुछ? सर ये बड़ा जैसे गूढ़ प्रश्न है, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, अलग से करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच अनुज जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। कल एक हमारा फिर वेबिनार है, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट द डीटीए इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड द इश्यूज एंड क्रिटिकल इश्यूज इन फॉर्म 15 CA/CB। लिंक मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, आप सब लोग मोस्ट आर वेलकम। थैंक यू वेरी